Hello, good morning students. In previous class we were reading about sowing of seeds. In sowing of seeds we read then a farmer before sowing seed select a good quality seeds because crop production are increased for good quality of seeds, and seeds are not a good quality, then crop production decrease. In next of sowing of seeds, farmer for sowing seed use seed drill machine. Seed drill in traditional method by animals, and now modern method using by tractors to cultivate the crops or sowing the seed. In modern time tractor used for seed drill seeds. Okay, and next in agriculture practice, after sowing of seed, now we read about manure and fertilizer. So third point, manure and fertilizer. First of all, here question arise, what is manure and fertilizer? After sowing of seeds, a farmer before preparation of soil use manure and fertilizer, and after sowing of seeds farmer use manure or fertilizer to increase the crop production. Or we can say that manure and fertilizer also helpful in growth of plants, because manure and fertilizer are increase soil fertility. सोइल की जो फर्टिलिटी है उस फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है कौन? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. इन फार्मर यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर to increase soil fertility, crop is improved, crops plants are growth, and many more importance of manure and fertilizer. Now to know the definition of manure and fertilizer, the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy crops, for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer, and this process are called manuring. ठीक है. तो क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मैन्योरिंग? द प्रोसेस इन विच एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन फील्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योरिंग. ठीक है. नेक्स्ट we detail study about what is manure and what is fertilizer. These both are different. Manure is different rather than fertilizer. Manure जो है, manure का प्रोडक्शन इन फील्ड किया जाता है. मैन्योर का प्रोडक्शन कहाँ होता है? फील्ड में होता है. और बात करें यदि फर्टिलाइज़र की,
तो फर्टिलाइजर इज सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर है ये फर्टिलाइजर सिंथेसाइज्ड होती है कहाँ पर? फैक्ट्रीज के अंदर। और मैन्योर जो है वो इन फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट पार्ट कि मैन्योर जो है, मैन्योर क्या है? ये ऑर्गेनिक वेस्ट है और ये फर्टिलाइजर क्या है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट है जिनका सिंथेसाइज फैक्ट्रीज के अंदर किया जाता है। अब ये जो मैन्योर है, मैन्योर में क्या होता है? काउ डंग। मैन्योर में मोस्टली काउ डंग, एनिमल्स लेफ्ट वेस्टेज मटेरियल और प्लांट्स लीफ और अदर रेदर देन अपनी जो रसोई है, जो किचन है, किचन का भी जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, इनका जो वेस्टेज है वो वेस्टेज किस में आता है? मैन्योर में आता है। ये जो मैन्योर है, इस मैन्योर में एक तो सिंपली मैन्योर हो गया, एंड ये जो मैन्योर है जब इसको प्रिपेयर किया जाता है तो इसको क्या किया जाता है कि जो भी किचन का जो वेस्ट है, यानी कि जो वेजिटेबल, जो फ्रूट्स, ये जो वेस्ट है, जो काउ डंग है, इनको क्या किया जाता है कि जो किचन वेस्ट है, जो एनिमल वेस्ट है, इनको क्या कर दिया जाता है? गड्ढे में डाला जाता है। ठीक है, और गड्ढे में डाल करके इनको सम टाइम के लिए लेफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पर मॉइस्चर जो है वो रखा जाता है, कीप मॉइस्चर। आफ्टर सम टाइम these wastage are converted into manure, and these manure are so too effectful in healthy growth of plants. And next, these manure are called compost. These manure are called compost, and this process are called composting. This process are called composting. The process in which animal or kitchen wastage are converted into manure or compost are called composting process. Now, a term vermicompost. What is vermicompost? When we are put in a hole of kitchen waste, animal waste or cow dung, in waste material some cockroach are left. Then क्या होगा कि जो कॉकरोच जो है वो क्या है? फार्मर का फ्रेंड है। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को जो मैन्योर है यानी कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। दिस प्रोसेस आर कोल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। इट मीन्स वी कैन से दैट कि मैन्योर टू सिंपल एग्जाम्पल कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। इन फर्टिलाइजर में अमोनियम सल्फेट, NPK, CAN, these are fertilizers, and these fertilizers are synthesized in factories. ठीक है, in fertilizer very rich amount in nutrients are present rather than manure, but in manure humus are present and humus are not present in fertilizer, or we can say that कि in fertilizer lack of humus. These fertilizers transportation is easy to rather than manure. ठीक है, in of fertilizers stored in at our home
but manure is not stored at our home. Manure is stored at our field. Okay, so now we can understand that what is manure and what is fertilizer. So now we can difference to manure and fertilizer. ठीक है, मैन्योर जो है, मैन्योर को प्रोडक्शन कहाँ होता है? मैन्योर का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन होता है इन फील्ड, और फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? इन फैक्ट्रीज, इन फील्ड एंड इन फैक्ट्रीज. ठीक है. नेक्स्ट, इन मैन्योर ह्यूमस अमाउंट रीच इन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन लैक ऑफ ह्यूमस. ओके, नाउ थर्ड पार्ट कि मैन्योर जो है, ये मैन्योर क्या है? नेचुरल सब्सटेंसेज है. मैन्योर क्या है? नेचुरल सब्सटेंसेज है. और जो फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलाइजर क्या है? सिंथेसाइज्ड जो सब्सटेंस है. ओके, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट है. नेक्स्ट पार्ट पर बात करें कि जो मैन्योर है, मैन्योर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी नहीं है रेदर देन फर्टिलाइजर्स. ओके, मैन्योर आर नॉट स्टोर्ड इन एट होम एंड फर्टिलाइजर्स आर स्टोर्ड इन एट होम. ठीक है. मैन्योर्स लेस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट रेदर देन fertilizers. Okay, because fertilizers in nitrogen, phosphorus, potassium are present in rich amount. Next, difference between कि मैन्योर की जो क्वांटिटी है वो प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, इट्स रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट and fertilizers less amount in needed to plants. Okay, these are main difference between manure and fertilizer. Now we can difference about manure and fertilizer. Now what is more important of इन विच मैन्योर और फर्टिलाइजर? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में से मोर इम्पोर्टेंट कौन है? तो इसकी बात करें तो इसके लिए मैन्योर जो है, ये मैन्योर मोर इम्पोर्टेंट है रेदर देन किसके? फर्टिलाइजर के. अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी अपन बात करें तो मैन्योर के कुछ सम एडवांटेज है, और वो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि ये सोइल का जो टेक्सचर है उस टेक्सचर को इम्प्रूव करता है. एडवांटेज ऑफ मैन्योर. फर्स्ट, इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सोइल. ठीक है, सोइल का जो टेक्सचर है उस टेक्सचर को इंप्रूव कर देता है. सेकंड, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल. सोइल की जो वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को भी क्या कर देता है? ये इंक्रीज कर देता है. थर्ड अपन कहें तो सोइल को
पोरस बनाए रखता है, पोरस यानी कि सॉइल को लूजली जो है वो बनाए रखता है। बट फर्टिलाइजर में क्या होता है, फर्टिलाइजर्स के अंदर जो सॉइल है वो सॉइल क्या हो जाती है, सॉलिड, सख्त हो जाती है ऊपर से। ओके, एंड वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है फर्टिलाइजर्स ड्यू टू फर्टिलाइजर इज लेस ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की जो वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो लो हो जाती है, किसके कारण, फर्टिलाइजर्स के कारण। फर्टिलाइजर्स के कारण क्यों लेस हो जाती है, वाई, बिकॉज जो फर्टिलाइजर्स है, इन फर्टिलाइजर के कारण जो सोइल है वो सोइल कैसी हो जाती है, सख्त हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ पॉइंट, तो जो मैन्योर है वो मैन्योर इंक्रीज करता है एरिएशन को। एरिएशन को इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो प्लांट्स है, जो स्मॉल प्लांट्स है वो इजी वे में क्या कर सकते हैं, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फर्टिलाइजर्स के कारण वही बात कि जो सोइल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, जिसके कारण इजी रेस्पिरेशन जो है वो स्मॉल प्लांट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ये these four important advantage, due to these advantage manure is more important rather than fertilizer। ठीक है, एंड एक टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा एक टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से भी सोइल जो फर्टिलिटी है उस सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। अब कैसे इस सोइल फर्टिलिटी को क्रॉप रोटेशन के द्वारा इंक्रीज किया जा सकता है, कि फार्मर जो है वो फील्ड के अंदर, जैसे एक सीजन के अंदर वो व्हीट और बार्ली का क्रॉप जो है प्रोडक्शन करता है, ठीक है, या वो कल्टीवेशन करता है। नेक्स्ट सीजन में जब वो व्हीट का और बार्ली का करता है तो जो सोइल है उस सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है। क्रॉप रोटेशन यानी नेक्स्ट सीजन के अंदर जब सीरियल के अलावा जैसे पल्सेज जो हैं उन पल्सेज का जब कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है, तो उनसे क्या होता है कि उनकी जो रूट्स हैं उन पर लेग्यूमिनस प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस रूट होती है, जिसके कारण जो सोइल है उस सोइल के अंदर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। किसके अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, नाइट्रोजन की अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। और सेकंड सीजन के अंदर जब नाइट्रोजन की अमाउंट जब वापस से रीच हो जाती है सोइल के अंदर, तो सोइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। व्हाई, बिकॉज प्लांट्स जो ग्रोथ करते हैं वो ग्रोथ किसके कारण होती है, ड्यू टू नाइट्रोजन। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की जब अमाउंट जो है रीच होगी कहाँ पर, सोइल में, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी और जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आज का जो अपनी जो क्लास थी, टुडे आवर क्लास टॉपिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर कंप्लीट हियर। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी रीडिंग अबाउट irrigation and after irrigation के after harvesting, protecting weeds, these topics are read. Okay, thanks for watching this class.